Assalamu alaikum parents. I am Sheikh Wasima. Hello children. Welcome to you all on Royals Educate channel. I hope all of you fine. Children, today I am going to teach you subject science, class 9, English medium, lesson number 1, laws of motion, and board is Maharashtra State Board. So children, please see this video till end and please subscribe my channel. Standard 9th, Science and Technology. Chapter 1, Laws of Motion. Motion of an object. Can you tell in which of the following examples can you see motion? How will you explain presence and absence of motion? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, मोशन मतलब क्या? हर वो चीज जो मूव करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अपनी पोजीशन चेंज करती है, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट विथ मोशन. फर्स्ट, द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड. फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, पंछी का उड़ना, ये भी एक एग्जांपल हो गया. सेकेंड, अ स्टेशनरी ट्रेन. मूविंग ट्रेन, ये देखो यहाँ पे पहला वर्ड ये मूविंग ट्रेन. मूविंग मतलब चलती हुई रेलगाड़ी. थर्ड, leaves flying through air. लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, ठीक है, पत्ते उड़ते हैं हवा के साथ में, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया. And fourth one, a stone lying on a hill. A stone rolling down a hill, पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है हिल के ऊपर से. ठीक है, छोटी सी हिल है, छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर से एक पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है, वो भी मोशन का ही एक एग्जांपल हुआ. We see the motion of several objects every day. Sometimes we cannot see the motion of an object directly. As in the case of a breeze, you can list other examples of motion besides those given here. तो ये कुछ एग्जांपल आप आपके सराउंडिंग में भी ढूंढ सकते हो. Think about it. You are traveling in a bus. Is the person sitting next to you in motion? What do you take into consideration to decide if an object is moving or not? You have learned that motion is a relative concept. If the position of an object is changing with respect to its surroundings, then it is said to be in motion. Otherwise, it is said to be at rest. लॉज जो है उनका वर्किंग समझना इजी हो जाता है आपके लिए जब आप उनको आपकी सराउंडिंग की चीजों के साथ में रिलेट करना सीख जाते हो. Displacement and distance. Let's try this. Measure the distance between point A and B in different ways as shown in figure. Now measure the distance along the dotted lines. Which distance is correct according to you and why? Think about it. Sheetal first went to her friend Sangeeta's house on her way to school. Prashant went straight from home to school. Both are walking with the same speed. Who will take less time to reach the school and why? In the above example, is there a difference between the actual distance and the distance travelled? What is it? Distance is the length of the actual path travelling by an object in motion while going from one point to another, whereas displacement is the minimum distance between the starting and finishing points. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है? एक जैसा ही लग रहा है सुनने में, तो डिफरेंस क्या है दोनों में वही देखने जा रहे हैं. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो ये क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ मतलब एक्चुअल में आप जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, जितना लेंथ आप कवर करेंगे दैट इज योर डिस्टेंस. ये सिंपली आपका जो लेंथ का यूनिट है मीटर्स है, किलोमीटर्स है, सेंटीमीटर. लेकिन
डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। मतलब अगर आप सपोज कोई पॉइंट से स्टार्ट करते हो तो किसी पॉइंट तक जाके आप रुकेंगे, तो दोनों पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपने कितनी दूरी, कितनी जगह चेंज की, पोजीशन आपने कहां तक चेंज की है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक फिगर है, आपकी बुक से ही लिया गया है। तो अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करती हूँ, पॉइंट ए से अगर मैंने स्टार्ट किया लाइक दिस, तो ये बी पॉइंट पे अगर मैं जाकर रुकती हूँ तो देखिए यहाँ पे ये जब ये कर्विंग पॉइंट है, ये कर्विंग नेचर का जो मेरा लेंथ मैंने कवर किया है, तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। मतलब ए से बी तक का जो मैंने ये लंबा रूट तय किया है दैट इज माय डिस्टेंस। उतना मैंने डिस्टेंस कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अगेन मैं रीड करती हूँ, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। देखो मिनिमम डिस्टेंस, अभी ए और बी को जोड़ने वाला मिनिमम डिस्टेंस का जो लाइन है वो मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। Use your brain power. Every morning, Sarlas walk round the edge of circular field having a radius of 100 meter. As shown in figure, if she starts from the point A and takes one round, how much distance has she walked and what is her displacement? अराउंड एक सर्कुलर फील्ड बना है, तो उसके अंदर सवारी वो वॉक करने जाती है, तो उसका रेडियस है 100 मीटर्स। इफ शी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए एंड टेक्स वन राउंड, हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉक्ड एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट? दोनों पूछा गया है। ये है आपका पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया और घूम के वन राउंड कंप्लीट करके वो ए पर ही आ गई। तो जितना वो स्वराली कंप्लीट चल के गई है वो है आपका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आया? फिर से याद कीजिए डेफिनेशन में हमने देखा था कि डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट क्या है? तो ए से स्टार्ट किया स्वराली ने और ए पर ही आ गई, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों तो एक ही हो गए। तो क्या होगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस अगर जीरो हो गया दोनों के बीच का, तो अपने आप डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या आया? जीरो आया। If a car starting from point P goes to point Q and then returns to point P, how much distance has it traveled and what is the displacement? पहले कार जा रही है P से Q की तरफ एंड देन रिटर्न हो रहा है कार आपका Q से P की तरफ। How much distance has it traveled and what is its displacement? तो अभी ये पूरी जो लेंथ है आपकी P से Q के बीच की, तो उसको मैं L से डिनोट कर लेती हूँ, ठीक है? डिस्टेंस L। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? ये देखो पहले P से लेकर यहां तक गया और फिर वापस Q से लेकर P तक आया। मतलब डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया आपका ट्वाइस L। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का जो है उसके अंदर का मिनिमम डिस्टेंस। अभी वो P से स्टार्ट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर P से स्टार्ट कर रहा है आपका कार, उसके बाद में Q से जाके रिटर्न, मतलब ऐसे जा रही है और वापस यहीं पे आ रही है, घूम घाम के P पॉइंट पे वो आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अपने आप? जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सिमिलर है। Even if the displacement of an object is zero, the actual distance traveled by it may not be zero. Speed and velocity. Can you recall what are vectors and scalars? में जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये पॉइंट्स है, ठीक है? वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, आपको याद है क्या? हर वो चीज जिसको आप गिन सकते हो, किसी भी मैटर्स को, मतलब दूध है, पानी है, या फिर किसी चीज का लेंथ है, थिकनेस है,
जो भी चीज आप गिन सकते हो वो हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी दिया जाता है तो उसको कहेंगे वेक्टर्स। ठीक है, मतलब जब मैं अभी लेंथ का ही ले लो, अगर मैं 5 मीटर चल के गई और मैंने अगर डायरेक्शन मेंशन किया कि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर चल के जा रही हूँ या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर में चल के जा रही हूँ, तो मैंने क्या किया, डायरेक्शन मेंशन किया। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। और मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया मैं 5 मीटर चल के आ गई, 5 मीटर चल के आ गई, तो इसमें मैंने डायरेक्शन बताया क्या, नहीं मेंशन किया। तो जब ऐसे होगा तो ये बन जाएगा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर्स क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। Which of the quantities distance, speed, velocity, time and displacement are scalars and which are vectors? डिस्टेंस जो है वो सिर्फ हमने देखा था पहली बार कि डिस्टेंस हम एज ए लेंथ का ही यूनिट लेते हैं। तो डिस्टेंस हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम। स्पेसिफिक जो भी आपका टाइम होगा तो उस टाइम में आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो गया आपका स्पीड। तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, इसके अंदर डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए यहाँ पर वेलोसिटी मींस आपकी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता है। डिस्प्लेसमेंट में हम हमेशा डायरेक्शन बताते हैं हमारी, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। टाइम, टाइम आपके टाइम अदर चीजों पे डिपेंड करता है कि टाइम सिंपली आप सेकेंड्स में दे सकते हो, मिनट्स में दे सकते हो, आवर में देते हो। तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में आप हमेशा क्या करते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी योर वेक्टर क्वांटिटी। Speed is equals to total distance travelled upon time required. The distance travelled in a particular direction by an object in unit time is called its velocity. Here unit time can be 1 second, 1 minute, 1 hour, etc. Velocity बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। The distance traveled in particular direction by an object in unit time is called its velocity. Per unit time, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 मिनट या फिर 1 सेकंड, कुछ भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। तो ये जो है इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। If large units are used, 1 year can also be used as a unit of time. The displacement that occurs in unit time is called velocity. कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यही टर्म यहाँ पे पुट कर दिया और फिर डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड योर वेलोसिटी। तो ये याद रखना, वेलोसिटी जो है वो रिलेट करता है डिस्प्लेसमेंट से। Velocity is equals to displacement upon time. वेलोसिटी का फॉर्मूला है v फॉर वेलोसिटी is equal to displacement upon time. Always remember, the unit of speed and velocity are the same. In the SI system, the unit is meter per second, while in CGS system, it is centimeter per second. Speed is related to distance, while velocity is related to the displacement. If the motion is along a straight line, the values of speed and velocity are the same. Otherwise, they can be different. Velocity is a displacement that occurs in unit time. In the first example, the straight line distance between the houses of Sheetal and Sangeeta is 500 meter. And that between Sangeeta's house and school is 1200 meter. Also, the straight line distance between Sheetal's house and school is 1300 meter. शीतल पहले जाती है अपनी फ्रेंड संगीता के घर, फिर उसके बाद में दोनों मिलकर जाते हैं स्कूल। ओके, तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना कवर होता है? मतलब Suppose Sheetal takes 5 minutes to reach Sangeeta's house
and then 24 minutes to reach school from there. Then जब शीतल यहाँ से स्टार्ट करती है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस वो चल के कितना जा रही है, शीतल का देखते हैं, दोनों भाई बहन है यहाँ पे, शीतल और प्रशांत। तो शीतल का पाथ क्या हुआ, वो 500 मीटर पहले जा रही है संगीता के घर की तरफ, मतलब यहाँ पे कितना आया 500 मीटर ये, और उसके बाद में संगीता के घर की तरफ से स्कूल की तरफ जब वो बढ़ते हैं तो 1200 मीटर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो 1200 मीटर हो गया, तो टोटल उसने कितना कवर किया, 500 प्लस 1200 मतलब डिस्टेंस संगीता ने कितना कवर किया टोटल, यहाँ तक 500 और आगे से 1200, मतलब 1200 प्लस 500 इज इक्वल टू 1700 मीटर्स, ठीक है। 1700 मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। अभी डिस्प्लेसमेंट का अगर देखा जाए कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कितना है, अभी उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो ये था और एंड पॉइंट क्या है, स्कूल है, तो ये बीच का पाथ छोड़ के मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा जोड़ने के लिए, तो हमने एज ए डायगोनल हमने उसको ज्वाइन किया, ट्रायंगल की जैसा दिख रहा है ना ये शेप, तो हमने एज ए डायगोनल उसको कनेक्ट कर दिया, तो मिनिमम डिस्टेंस आपको कितना मिला 1300 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 1300 मीटर। Sheetal's speed along path A is equals to distance upon time is equals to 500 meter upon 5 minute is equals to 100 meter per minute. Sheetal's speed along path B is equals to distance upon time is equals to 1200 meter upon 24 minute is equals to 50 meter per minute. Sheetal's average speed is equals to total distance upon total time is equals to 700 meter upon 29 minute is equals to 58.6 meter per minute. Sheetal's velocity is equals to displacement upon time is equals to 100 meter upon 29 minute is equals to Sheetal's velocity is equals to 44.83 meter per minute. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हर बार अलग अलग आए ये जरूरी नहीं, अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो दोनों का जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों एक नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जब अलग अलग है और आपका ऑब्जेक्ट सीधे सीधे ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होंगे। लेकिन अगर आपका पाथ आड़ा तिरछा है या फिर आप पाथ अगर डायरेक्शन आपकी चेंज होती है हर बार, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग ही आएंगे। ये देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा डिस्टेंस कितना आया 1700 मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 1300 मीटर्स, तो ये डिफरेंस है दोनों में। Effect of speed and direction of velocity. Sachin is traveling on a motorbike. Explain what will happen in the following events during Sachin's ride. What will be effect on velocity on the motorcycle if its speed increases or decreases but its direction remains unchanged? Effect of speed and direction on velocity. तो वेलोसिटी जो है वो एक तरह से स्पीड ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है स्पीड और डायरेक्शन पे, दोनों पे। और चेंज कैसे होती है, तो चेंज के लिए भी फोनोमेना है यहाँ पे, चेंजिंग द स्पीड while keeping the direction same. सिंपली आप क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं, तो अगर आप स्पीड से साइकिल चला रहे हैं और सडनली स्पीड ब्रेकर आता है तो आप क्या करोगे, अपना स्पीड कम कर लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन आपका जो है वो सेम है, लेकिन आप क्या करते हो, स्पीड कम कर लेते हो, मतलब डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर आपका स्पीड चेंज हुआ तो आपका वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। आप क्या करोगे, स्पीड से जा रहे हो लेकिन स्पीड ब्रेकर आने के बाद आप रुकते हो, फिर धीरे से उसको क्रॉस करके फिर अपने आप ओरिजिनल जो स्पीड था उसके ऊपर आप आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड चेंज होने की वजह से
आपका वेलोसिटी भी चेंज हो गया। In case of a turning on the road, will the velocity and speed be same? If Sachin changes the direction of the motorcycle, keeping its speed constant, what will be the effect on the velocity? Changing the direction while keeping the speed same. आप रास्ते से जा रहे हो और एकदम से कोई मोड़ आया, शार्प टर्न आ गया, तो आप क्या करोगे? आपकी स्पीड सेम रखते हुए क्या करोगे? सिर्फ टर्न कर रहे हो अपने व्हीकल को, तो इसको कहेंगे चेंजिंग योर डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द स्पीड सेम। तो यहाँ पे भी क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। If on a turning, Sachin changes the direction as well as the speed of the motorcycle, what will be the effect on its velocity? Changing the speed as well as direction, दोनों आप साथ साथ जब चेंज करते हैं तो आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। It is clear from the above that velocity depends on speed as well as direction, and that velocity changes by changing the speed while keeping the direction same, changing the direction while keeping the speed same, changing the speed as well as the direction. Always remember, the first scientist to measure speed as a distance time was Galileo. The speed of sound is dry air is 343.2 meter per second, while the speed of light is about 3 into 10 raised to 8 meter per second. The speed of revolution of the earth around the sun is about 29,770 meter per second. The speed of sound in dry air is 342 meters per second. करीब करीब 350 मीटर ट्रैवल करती है हमारी वॉइस एक ही सेकेंड में। स्पीड ऑफ लाइट 10⁻⁸ है, तो लाइट का स्पीड कितना हुआ? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। सोचिए, इसी वजह से हमारी सूरज की जो रोशनी है वो हम तक के ट्रैवल करके आती है, और इतनी नहीं, बहुत जल्दी पहुंच जाती है। स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मतलब सूरज के इर्द गिर्द जो घूमती है हमारी पृथ्वी, तो उसकी स्पीड दी है हमको 29,770 मीटर्स पर सेकेंड। Uniform and non-uniform linear motion. Amar, Akbar and Anthony are the traveling in different cars with different velocities. The distance covered by them during different time intervals are given in the following table. Use your brain power. What is the time interval between the notings of distances made by Amar, Akbar and Anthony? Who has covered equal distance in equal time intervals? Are all the distances covered by Akbar in the fixed time intervals the same? Considering the distances covered by Amar, Akbar and Anthony, is the fixed time intervals, what can you say about their speeds? If an object covers equal distances in equal time intervals, it is said to be moving with uniform speed. Uniform and non-uniform linear motion. If an object covers equal distances in equal time interval, then it is said to be moving with uniform speed. तो इक्वल डिस्टेंस हो गए, तो इक्वल टाइम में जब मैं इक्वल डिस्टेंस कवर करूंगी तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और इसके उल्टा अगर टाइम इंटरवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब टाइम सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस जो है वो अलग अलग अगर मैं कवर करूंगी, तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एक एग्जांपल। If an object covers unequal distances in equal time intervals,
It is said to be moving with non-uniform speed. For example, the motion of a vehicle being driven through heavy traffic. कि समझो हेवी ट्रैफिक में कार फंस गई, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा अगर जैसे ही ट्रैफिक खुलता है आप क्या करोगे, स्पीडली आगे जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 10-12 मीटर एक ही टाइम में आप ट्रेवल कर लेते हैं। फिर उसके बाद में समझो 20-25 मिनट तक की गाड़ी अपनी जगह से हिली ही नहीं, तो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ये एग्जांपल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे के पॉइंट्स हम अगले लेक्चर में जरूर कवर करेंगे।